Children, today we are starting a revision work of half a day. So here we are doing the first chapter of revision, that is food and feeding habits of animal. Food means खाना और feeding मतलब खाने की आदतें, वो भी किसकी? Animals की. So everybody required foods because it gives us energy to work and play, and it's also help us to live, grow and stay healthy. Okay children, so we are studying, you know what is the main role of food क्यों है? हमें to stay healthy. Okay, now animals, we categorize these into types of animals living and the ways of feeding habits in our chapter. Okay, first we will understand about types of animals. According, different animals have different feeding habits. खाने की आदतें होती है. Some animal likes to eat plants, some animal likes to eat flesh of other animals, but some animals like both. So what we call them? Let's learn in this chapter. Yes, first one is herbivorous animals. That is the animals which likes to eat plants. We call them plant-eating animals or herbivorous animals. So the example of herbivorous animals is, say, cow, sheep, elephant, goat, many of deer, all are. Then carnivorous animal who likes to eat carn. Carn means flesh of other animals. We call them flesh-eating animals or carnivorous animals. So what are the examples of carnivorous animals? So the examples is lion, the king of jungle, and tiger is a national animal. Then leopard. Okay, there are many examples. Okay, next is omnivorous. Omni means the herbivorous and carnivorous are together. साथ में जब herbivorous भी animal है और carnivorous भी है, उन animals को क्या बोलते हैं हम? Carnivorous animal है. It means the animal which eat both plants as well as flesh of other animals. So we call them omnivorous animals. So the examples of omnivorous animals are, yes, it is a pet animal, that is dog, and also a pet animal cat, because cat milk भी खाती, रोटी भी खाती और flesh भी खाती. Dog भी same है, okay? And bear, a bear भी है. Bear क्या? Honey. Bear likes to eat honey and as well as flesh of other animals. वो bushes भी खा लेता है. So this is the types of animals, that is the herbivorous and carnivorous and omnivorous animals. So children, you will learn the examples of each of types of animals according to the feeding habits. Next is living out. हमारे साथ कुछ और animals भी रहते हैं, उनको भी हमने categorize किया है. That is living animals. First is pet animals. Pet animals, they live along with us. They are not harm us. They care us. They guard us. Even we should care them. We should protect them and हमें कभी भी उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए. These animals are very cute and loving. ये बहुत loving होते हैं. What are these? Cat, dog, fish और ये सब क्या animals है? Pet animals है. So pet animals are dog, cat. Okay, these are the pet animals. They guards our home also. Then next is domestic animals. Domestic animals helps in our daily life. You know children, in our previously जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, ये नहीं थी, आजकल तो कितने सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट इन द प्रीवियस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो एनिमल्स के थ्रू ही हम अपने जितना भी लोड होता था उन पे कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे. इवन वी गेट मिल्क फ्रॉम काव हेल्प अस इन help by providing milk. Horse is used for carrying the load and for riding. Riding करने में भी enjoy riding when we go outside for tour पे जाते हैं ना घूमने के तब. Then domestic animals. Then even sheep also. Sheep gives us wool. और wool से हमारी body क्या रहती है? Warm रहती है, जो वो हमें किससे protect करती है? Cold से protect करती है. So the examples are horse. Even camel also, camel cart होता है, bullock cart होता है, horse cart होता है. Then sheep, cow,
वेज ऑफ फीडिंग मीन्स कि हर एनिमल्स का खाने का तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का फूड वो खाता है उसके अकॉर्डिंग ही उनके जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है। ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द एनिमल्स हु ईट ग्रेन्स। जो एनिमल्स ग्रेन्स खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉवर्स, विच नो देयर फूड। उन एनिमल्स का क्या होते हैं, जो बक इंसिजर मीन जो फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ऐसे यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। Like here is you can see the squirrel and the rabbit. They have sharp front teeth. उनके क्या होते हैं, sharp front teeth होते हैं, sharp front teeth. So they can gnaw their food. उसको जो भी nuts खाते हैं, grains खाते हैं, उसको अपने front teeth से उसको crush कर सके, तोड़ सके, and use for their cutting. So we call that gnawers. इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, gnawers बोलते हैं। The animals like squirrels, rabbits, rats eat grains, fruits and nuts, and they have very sharp front teeth for cutting. And these animals gnaw their food, मतलब cut कर देते हैं, and they are called gnawers. Next is about the swallow their food whole. Means कि few animals like जो कि अपने food को पूरा, जो भी अपना खाना होता है उसको पहले पूरा निगल जाते हैं। स्वालो मतलब निगलना, दैट विदाउट चूइंग, उसको चबाए बिना ही पूरा बॉडी में स्टमक तक पहुंचा देना, दैट इज स्वालो द होल, पूरा बॉडी को। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है, लाइक इसका नॉवर्स के एग्जांपल्स क्या थे, स्क्विरल्स थे, रैट्स थे एंड रैबिट आल्सो। एंड एग्जांपल्स ऑफ स्वालो द होल इज स्नेक, फ्रॉग। तो स्नेक क्या करता है, पूरा जो भी इसका खाना होता है उसको पूरा स्वालो कर देता है, देन लेटर जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है उसको वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होके उसको एनर्जी देता, हेल्दी बनाता है। ओके, देन फ्रॉग में क्या होता है, उसकी स्टिक टंग होती है, इसकी टंग इतनी लॉन्ग होती है कि वो दूर से ही अपने इंसेक्ट को कैच करके अपने स्टमक में इंसर्ट कर देता है। सो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। Some animals swallow their food whole without chewing it. And frogs, chameleon मतलब गिरगिट, lizards have a long sticky tongue. टंग कैसी होती है, long and sticky. कैसी टंग है उनकी, long और sticky टंग होती है, जिससे कि वो उस इंसेक्ट उसी पे अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है और वो उसको टंग में जाके स्टमक में चला जाता है। You can see the picture how it eats, कैसे खा रहा है देखो। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक का भी बताया पूरा एनिमल कैसे चीज करता है, swallow the food without chewing because they do not have teeth. उनके टीथ ही नहीं होते हैं, इसलिए वो chewing करते ही नहीं और डायरेक्ट swallow करते हैं। Though a snake has a small mouth, फिर भी स्नेक का कितना छोटा सा माउथ है, लेकिन वो जब वो अपना खाना ईट करता है वो उतना वाइड करता है, इवन 180 से भी बड़ा उसका एंगल हो जाता है, वो पूरा उसको ईट करेगा। नेक्स्ट इज एनिमल्स टीयर एंड च्यू फूड। जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं उनका खाने का तरीका कैसा होता है, उनका जो कैनाइन टीथ होते हैं, जो जस्ट क्या इंसिजर्स के पास में जो टीथ होते हैं, जो फ्रंट के टीथ के जस्ट पास में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। दैट इज यू कैन सी दिस इज द these are कैनाइन टीथ। इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, और ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं। इससे क्या करते हैं, वो अपने फूड को टेयर करते हैं या और now carnivores such as lions, tiger, wolves have special teeth to tear and chew the flesh of other animals, and their front teeth are sharp, curved and pointed. उनके teeth कैसे होते हैं, sharp, curved and pointed, बहुत ही तेज जैसे नाइफ होता है ना, और curved ताकि हुक टाइप होते हैं। जैसे आपने बर्ड्स का पढ़ा था कि हुक टाइप, जो प्लेइंग बर्ड्स होती है हुक टाइप होती है, वैसे ही इनका जो टीथ है वो कर्व है, हुक पैटर्न में है, जिससे कि वो उसको टेयर कर सके। और देयर बैक टीथ, जो इनके बैक टीथ होते हैं, जो फ्लैश को च्यूइंग करने के, वो फ्लैट और ब्रॉड होते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू च्यूइंग। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ, ईट एंड च्यू एनिमल्स मींस ईट एंड च्यू। ईट मतलब पहले खाओ और बाद में चबाओ। वो एनिमल्स वो कौन से होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। वो एनिमल्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, जो कि पहले ईट करते हैं देन च्यू। आपने देखा होगा कि जब काउज या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करे जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चले जा रहा है, वो उनका क्या आदत होती है,
इतना ग्रेजिंग करते हैं जब तक कि उनका स्टमक फुल ना हो जाए, विदाउट च्यूइंग। उसको च्यूइंग नहीं करते, उसको सिर्फ उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं उसको बाइट करने में, ग्रास को बाइट करने के लिए यूज करते हैं और फिर पूरा स्टमक वो फुल कर देते हैं। और जब उन्होंने पूरा खा लिया, वहां से मूव हो गए, और फिर आपने नोटिस किया होगा खाना भी नहीं खा रहे लेकिन दैट इज रूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? रूमिनेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। लेट्स रीड इट इन द बुक। Herbivores like cows, buffaloes eat grass and leaves. They use flat, sharp, broad front teeth. अब इसके जो कार्निवोरस का था उनके पीछे के दांत क्या थे? फ्लैट थे, ब्रॉड थे, ओके। बट हमारे हर्बीवोरस के क्या है? फ्रंट टीथ क्या है? फ्लैट, शार्प और ब्रॉड है, टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास। मींस कि ग्रास को और लीव्स को तोड़ने के लिए यूज करते हैं। एंड दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ मतलब कि उसको चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो उसको यूज करते हैं, उसको फूड को च्यूइंग करने के लिए, ओके। नाउ काउ बफेलो फर्स्ट स्वैलो देयर फूड। पहले क्या करते हैं? स्वैलो कर लेते हैं, पूरा फूड निगल लेते हैं, एंड लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ, और अपने माउथ में लेके आ जाता है और च्यू इट फॉर आवर्स। एंड दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड और रूमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? च्यूइंग द कड और रूमिनेशन। नेक्स्ट इज टेक इन लिक्विड फूड। एनिमल्स दोज हु टेक इन लिक्विड फूड, जो एनिमल्स लिक्विड फूड लेता है, लाइक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के टीथ नहीं होते हैं, इवन उनके माउथ ही दिखता ही नहीं, हमें दिखता है हमें कभी माउथ उसका। सो दे हैव टेक, वो ओनली लिक्विड फूड लेते हैं, जैसे मॉस्किटो सक ब्लड, बटरफ्लाई नेक्टर सक करती है, ओके। सो सेम, so what is, so let's read in the book. Some animals take in liquid food. These animals have a long hollow tube. उनमें क्या होता है? उनकी लॉन्ग और थिन हॉलो ट्यूब होती है। They use to suck the food into their mouth. और वो उसका यूज क्या करते हैं? उसको suck करके अपने माउथ में करते हैं। Butterflies and bees use these tubes to suck nectar from the flowers, and like we suck juice using a straw. सेम इसका प्रोसेस कैसा है? जैसे हम कोई जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, फ्रूटी पीते हैं स्ट्रॉ से, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं स्ट्रॉ यूज करते हैं, सेम वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? स्ट्रॉ की हेल्प से, लाइक जो उनकी थिन हॉलो ट्यूब होती है उसकी हेल्प से वो सक करके अपने माउथ में फूड लेते हैं। लाइक मॉस्किटोज, लीचेस सक ब्लड फ्रॉम बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। जैसे लीचेस, आपने देखा एक एनिमल जो अपनी बॉडी के चिपक जाता है, निकलता है, वो लीच होता है, वो हमारा खून चूस लेते हैं। एंड सम एनिमल्स जो कि टंग के हेल्प से लैप अप मिल्क एंड वाटर, लाइक डॉग एंड कैट, वो कैसे टंग की हेल्प से ना पानी इंसर्ट करते हैं, पूरी टंग बाहर आती है, उसको फोल्ड करके पानी ले सकते हैं। सो दैट इज द लैपिंग। वी कॉल दैट मैटर इज टेकिंग लिक्विड फूड इज लैपिंग। नेक्स्ट इज फूड चेन। इट इज फूड चेन। A deer eats grass. Here is a food chain viewers. मतलब a deer eats grass, a tiger eats deer. So all the animals are plant interdependent to each other. सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। So they form a chain. इससे क्या बनी? एक चेन बनी है। ये प्लांट को डियर ने खा लिया, डियर को टाइगर ने खा लिया, ओके। और टाइगर जब मर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसको कौन खा लेता है? पैरासाइट्स खा लेते हैं, ओके। जो सेम चीज है, लो आप ये एक और फूड चेन ले सकते हैं, लाइक दिस ग्रेन फ्रॉम प्लांट। ग्रेन्स को रैट ने खा लिया, देन रैट को किसने ईट किया? स्नेक ने, देन स्नेक को ईगल ने। सो अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन। आपको पता है जो फूड चेन जो होती है वो किससे बनती है? हमेशा उसमें प्लांट को वी से प्रोड्यूसर, प्लांट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और जो प्लांट को जो ईट करता है वी कॉल दैम कंज्यूमर। What we call them? Consumer, and plant is the producer, जो प्रोड्यूस कर रहा है। मेन सोर्स किससे मिल रहा है? सबको। और जब ये फूड ईट करते हैं तो उनमें एनर्जी फ्लो करती है। क्या होती है? इसकी एनर्जी उसमें फ्लो होती है और डियर की एनर्जी प्लांट में फ्लो होती है, लेकिन पूरी नहीं होती, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्लो। सो अ फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद प्लांट बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं फूड के लिए, ओनली दे मेक देयर ओन फूड, इसलिए हम उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
डायरेक्टली कैसे? जैसे डियर डायरेक्टली अपने दिख रहा है कि वो प्लांट ही खाएगा, लेकिन टाइगर कैसे दिख रहा है कि प्लांट पे डिपेंड है इनडायरेक्टली, बिकॉज उसने डियर को खाया और डियर ने क्या खाया है? प्लांट को खाया। इसलिए ऑल द एनिमल्स आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। सारे एनिमल्स या तो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर होते हैं। Children, this chapter is over here. I'll send the exercise along with them. Do this exercise. Okay, revision work is there. You just do this revision work in your notebook. If you have any doubt, okay, you can ask me. But don't forget to read the chapter. Bye bye. Take care. Thank you.